student, today we will discuss overhead budget. What is overhead? As you know, there are three elements of your cost. There are three elements of your cost, that is material, labor and your overhead. These are the three elements of your cost. Now, all the indirect expenses, as you know, your direct material, direct labor and your overhead. Direct material means those part of material which is directly allocated to the product at the time of production. Like that, in case of direct labor also, that is directly allocated to the product. But in case of your expenses, overhead means what? All indirect expenses is called your overhead. All indirect expenses, that is called your overhead. Clear my point? Indirect expenses means indirect factory expenses, means factory overhead. Clear my point? Then administrative overhead, selling and distribution overhead. For each particular, that is administration, selling, distribution, in each and every cases your overhead is there, and for each and every cases separately overhead budget is prepared. Clear my point? So in this case, overhead, it is fixed overhead. It may be fixed, maybe your variable. Fixed means whatever may be your volume of production, the expenses is remain constant. That whatever may be the output, expenses is remain same in case of fixed expenses. But in case of variable means, if the output is increased, definitely your variable overhead is also proportionately increased. In some cases, your fixed overhead and variable overhead separately it is given in the question. Question में फिक्स एक्सपेंसेस कितना है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया रहता है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, परसेंटेज में दिया रहता है, आपको निकालना पड़ेगा. मान लीजिए कोई क्वेश्चंस में बोल रहे हैं टोटल एक्सपेंसेस, आप अगर बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस और फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड. Fixed overhead plus variable overhead is equal to total overhead. Clear my point? Now, this fixed overhead are given separately. Variable overhead are also given separately in the question. अगर क्वेश्चंस में सेपरेटली दिया है तो आपको ओवरहेड बजट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा. लेकिन कभी कभी ये अमाउंट में भी रहता है, कभी कभी ये परसेंटेज में भी क्वेश्चन में दिया रहता है. अगर अमाउंट में दिया है तो आप डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड जब बजट बनाएंगे तो आप डायरेक्ट इसको ले लीजिएगा, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, अगर अमाउंट में है तो. लेकिन अगर परसेंटेज में है तो आपको टोटल मिलेगा, टोटल का परसेंटेज निकाल देना. मान लीजिए बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड आर 40%, इट मींस रेस्ट इज योर 60%.
variable is 60% and fixed is your 40%. So out of total overhead you will calculate 40% which is fixed in nature, and out of total overhead you will calculate 60% which are variable in nature. Clear my point? अगर क्वेश्चंस में चाहे अमाउंट में हो चाहे परसेंटेज में हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ओवरहेड बजट बनाने के टाइम में। लेकिन कभी-कभी टोटल ओवरहेड दिया रहता है और फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है, इसके बारे में क्वेश्चंस कुछ भी नहीं बोलता है। दैट मींस सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल मींस फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज सेमी वेरिएबल। इसका मतलब टोटल ओवरहेड दिया है, आपको फिक्स्ड ओवरहेड कितना निकालना है और वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में कितना दिया है निकालना है। यहां थोड़ा डिफिकल्टीज क्रिएट होता है, लेकिन जब अलग अलग दिया रहता है तो आपको बजट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आप सीधा टोटल एक्सपेंसेस फिक्स्ड और वेरिएबल को जोड़ दीजिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बजट हो चाहे फैक्ट्री ओवरहेड बजट हो, कोई भी बजट हो, अगर आपको अलग अलग दिया है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जब सेमी वेरिएबल का बात करते हैं, सेमी वेरिएबल मतलब फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, मतलब टोटल आपको ओवरहेड दिया है, आपको सेग्रीगेट करना है हाउ मच इज फिक्स्ड एंड हाउ मच इज वेरिएबल, तो वहां थोड़ा डिफिकल्टीज होता है। तो हम एक इलस्ट्रेशन लेते हुए इस चीज को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए इस क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस में दिया है, क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, there are two level of production, that is 1,20,000 unit and another level of production that is 1,50,000 unit, and the information is given for 1,20,000 unit and 1,50,000 unit। क्या दिया है क्वेश्चंस में, इनडायरेक्ट मटेरियल 2,64,000 for 1,20,000 unit, 3,30,000 for 1,50,000 unit, indirect labor 1,50,000 rupees for 1,20,000 unit, then 1,87,500 rupees for 1,50,000 unit. Another your indirect expenses, that is maintenance, for 1,20,000 unit 84,000 and for 1,50,000 unit 1,02,000. Another your supervision, that is given for 1,20,000 unit 1,98,000 and for 1,50,000 unit 2,34,000. Now engineering service 94,000 for 1,20,000 unit and 94,000 for 1,50,000 unit. Now question asks you to find out the factory overhead budget for 1,40,000 units. ये हमको क्वेश्चंस में गिवन है। तो देखिए यहाँ कितना फिक्स्ड ओवरहेड है, कितना वेरिएबल ओवरहेड है, क्वेश्चंस कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो आपको यहाँ से जितना भी हिडन इंफॉर्मेशन है फिक्स्ड ओवरहेड का और वेरिएबल ओवरहेड का आपको निकालना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ा सा वर्किंग पहले करना पड़ेगा कि कितना फिक्स्ड ओवरहेड है और कितना वेरिएबल ओवरहेड है। तो आपको इस चीज में करना क्या है कि आपका टोटल जो एक्सपेंसेस है 1,20,000 यूनिट के लिए ये क्वेश्चंस में दिया है, और टोटल ओवरहेड फॉर 1,50,000 यूनिट आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब अगर ये टोटल है, इसका मतलब इसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी है और वेरिएबल ओवरहेड भी है। हमको इस चीज को अलग करना है।
और फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, वेरिएबल ओवरहेड कितना है, हमको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2,64,00,000 है, 3,30,000 है, इसमें फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में देखिए दोनों 94,000 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन से मेरे को पता चल रहा है ये जो इंजीनियरिंग सर्विस है ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। हमको शुरू से ही पता चल गया ये फिक्स्ड है, लेकिन बाकी का पता नहीं चल रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा। आप कैसे निकालेंगे, इसका दोनों का डिफरेंस, मान लीजिए मैं इसको ए समझता हूं और इसको बी समझता हूं, तो आप लोग क्या करेंगे, बी माइनस ए करिए, बी माइनस ए करने से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यूनिट में कितना आएगा, 1,50,000 यूनिट माइनस 1,20,000 यूनिट, तो 30,000 यूनिट का डिफरेंस आया। क्लियर, ये आपका यूनिट का डिफरेंस आया। अब आप अमाउंट का डिफरेंस निकालिए, 3,30,000 माइनस 2,64,000, तो इसका डिफरेंस आएगा आपका 66,000। क्लियर, 3,30,000 माइनस 2,64,000। इसके बाद देखिए 1,87,500 माइनस 1,50,000, ये आएगा 37,500। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालिए, 1,02,000 माइनस 84,000, तो इसका डिफरेंस आएगा आपका 18,000। उसी तरह सुपरविजन का डिफरेंस निकालिए, 2,34,000 माइनस 1,98,000, तो ये आएगा 36,000। और ये तो नील आएगा, आपको पता है ये सारा जो है ये फिक्स्ड है। तो पहला स्टेप आप ये डिफरेंस का निकाले, ये दोनों क्वेश्चंस गिवन है, ए और बी दोनों क्वेश्चंस में दिया हुआ है। हम इसका डिफरेंस को निकाले, यूनिट का डिफरेंस को भी लिए और अमाउंट का डिफरेंस को भी लिए। इसका मतलब है 30,000 यूनिट के लिए इतना डिफरेंस आया। क्लियर, अगर 30,000 डिफरेंस के लिए इतना 30,000 यूनिट के लिए इतना डिफरेंस आया, तो आप पर यूनिट निकालिए। इसको हम मान लेते हैं सी, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं। डी क्या होगा, डी होगा सी डिवाइडेड बाय 30,000, सी डिवाइडेड बाय 30,000। क्लियर, सी डी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 30,000। इसका मतलब 66,000 यहां मैं निकाल देता हूं, 66,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 66,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू 2.20, 2.20, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 2. दूसरा का कितना होगा, 37,500 डिवाइडेड बाय 30,000, डिवाइडेड बाय 30,000, ये कितना आएगा 1.25, 1.25, दिस इज पर यूनिट 1.25। क्लियर, उसी तरह आप लेंगे 18,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू कितना होगा 0.60, 0.60, यहां आएगा 0.60। तीसरा आएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो कितना आएगा 1.20 इज इक्वल टू 1.20, तो आपको लिखना पड़ेगा 1.20। यहां तो आपको मालूम है यहां कुछ भी नहीं होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमको मालूम है। तो ये वर्कआउट हो गया। सबसे पहले हम डिफरेंस को निकाले, डिफरेंस को डिवाइड किए, ये पर यूनिट आ गया। क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या आया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये सारा जो है वेरिएबल कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, पर यूनिट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दिया। ये निकालने के बाद यहां लिखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए ये डी लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, डी मल्टीप्लाई इंटू ए, डी मल्टीप्लाई इंटू ए, क्योंकि पर यूनिट पता चला। आप कोई भी ले सकते हैं, 1,20,000 भी ले सकते हैं यूनिट, 1,50,000 यूनिट भी ले सकते हैं। क्यों, हम लोग का पर यूनिट निकल गया, मतलब 1,20,000 यूनिट के लिए कितना खर्चा होना चाहिए निकल जाएगा, जो वेरिएबल्स है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को 1,20,000 यूनिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोला डी मल्टीप्लाई इंटू डी जितना निकला है मल्टीप्लाई इंटू ए इन यूनिट, ए इन यूनिट, यूनिट के साथ आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा आप खुद बताइए। 1,20,000 मल्टीप्लाई इंटू 2,20,000, ये आएगा आप लोग का 2,64,000, ये आएगा 2,64,000। देखिए अब यहां भी 2,64,000 है और यहां भी 2,64,000 है। इसका मतलब है ये टोटल जो है ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है। क्लियर माय पॉइंट, दोनों तरफ आपका सेम है, इसका मतलब ये टोटली वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ये टोटली वेरिएबल है। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट आप 1,20,000 मल्टीप्लाई इंटू 1.25 करिए, ये आएगा आपका 1,50,000, ये आएगा 1,50,000। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां भी 1,50,000 है, यहां भी 1,50,000 है, ये भी टोटल जो है वेरिएबल है। क्लियर, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट क्या करेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई इंटू 0.60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 आएगा। 72,000 इज योर वेरिएबल। देखिए यहां डिफरेंस है, टोटल था 84,000, 84,000 में से 72,000 वेरिएबल है, तो बाकी फिक्स्ड है। बाकी पैसा क्या होगा, डिफरेंस, टोटल एक्सपेंसेस माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सो 84,000 माइनस 72,000 इज इक्वल टू 14,000, सॉरी 72,000 इज इक्वल टू 12,000। कितना होगा ये, 12,000 रुपीज। दिस इज फिक्स्ड इन नेचर, 12,000 इज फिक्स्ड इन नेचर। क्लियर, आपको पता चल जा रहा है कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। अब देखिए सुपरविजन का कितना है, 1,20,000 मल्टीप्लाई इंटू 1.20 मल्टीप्लाई इंटू 1.20 इज इक्वल टू 1,44,000, नहीं क्या, 1,44,000। सो यहां देखिए 1,98,000 माइनस 1,44,000, ये 1,44,000 जो ये वेरिएबल है, तो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू फिक्स्ड। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 54,000। कितना आ रहा है, 54,000। क्लियर, 54,000 इज योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड। यहां दोनों पता चल गया, और ये तो फिक्स्ड है ही है, कितना, 94,000। तो देखिए अब हमको वेरिएबल भी डिस्टिंग्विश्ड हो गया और फिक्स्ड भी डिस्टिंग्विश्ड हो गया। अब दोनों अलग होने के बाद बजट बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये जितना भी हम लोग कर रहे थे ये आपका वर्किंग्स था। ये वर्किंग सबसे पहले करना पड़ेगा, आपको अलग करना पड़ेगा कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड। कैसे करेंगे मैं आपको बता दिया डिटेल्स में। अब हम बजट बनाएंगे। अब जो हमारा एक्चुअल आंसर है, यू विल प्रिपेयर फैक्ट्री बजट फॉर 1,40,000 यूनिट। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना यूनिट? 1,40,000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं 2.20 रुपीस। 2.20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा आपका 3 लाख। क्लियर? देन इनडायरेक्ट लेबर कितना यूनिट है? 1,40,000 यूनिट। वेरिएबल कितना है? 1.25। वेरिएबल कितना है? 1.25। तो ये होगा 1,75,000। 1,75,000। Then comes to maintenance. Maintenance, that is 1,40,000 unit multiply into 0.60। ये वेरिएबल है, क्लियर? So 1,00,000 into 84,000, this is 84,000 is your variable। यहां फिक्स्ड कितना है? मेंटेनेंस में फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप निकाल चुके हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस इज 12,000। यू विल ऐड 12,000 हियर। क्लियर? देन मेंटेनेंस के बाद है आपका सुपरविजन। सुपरविजन 1,40,000 यूनिट multiply into 1.20। 1.20 ये वेरिएबल है। 1.20 ये वेरिएबल है, that is 1,68,000। 1,68,000 ये वेरिएबल है। इसका फिक्स्ड कितना है? 54,000। आप यहां लिखिए fixed expenses, that is 54,000। clear? Then comes to engineering service। engineering service, that is totally fixed कितना? 94,000। फिर इसको ऐड करेंगे। ऐड करने से कितना होगा? 0 0 0 4 4 8 8 16 17 18 22 22 5 27 7 2 9 2 11 16 22 23 26 31 38 8 3 3 1 4 5 3 8। So 8,87,000 is your overhead budget। So budget is prepared for 8,87,000। देख लीजिएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मैं ऐसे कर दिया हूं, गलत भी हो सकता है, थोड़ा देख लीजिएगा। सो मेरा कहना यह है, इफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ आर एडेड इन एनी क्वेश्चंस, अगर आपको टोटल दिया है तो पहला क्वेश्चंस को लिखिए, वर्किंग्स को निकालिए। वर्किंग्स निकालने के बाद
फिक्स्ड ओवरहेड अलग करिए, वेरिएबल ओवरहेड को अलग करिए, फिर आप बजट को बनाइए। सबसे पहले आपको वर्किंग्स करना पड़ेगा, वर्किंग्स के बाद आपको बजट करना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस व्हिच विल बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए फैक्ट्री ओवरहेड बजट। लेकिन हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बजट ये इजी है। इसमें डायरेक्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है, वेरिएबल कितना है। जैसा एग्जांपल मान लीजिए ऑफिस रेंट इज फिक्स्ड, ऑफिस स्टेशनरी इज फिक्स्ड, सो फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड whether it is related to the administration, whether it is related to the selling distribution, whatever it may be, and you will add it and find out the total cost. That total cost is called your overhead budget. Now this question is related to factory overhead budget. Clear my point? How this budget is prepared as we have discussed. आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप सबको धन्यवाद।